Good afternoon, sir, and a very warm welcome to SGT University. And now may we welcome our worthy guest with flowers. I welcome all deans, directors, university officials, faculty members, and the pride of this program, our students, our budding journalists, to the orientation program of the Faculty of Mass Communication. तो आइए इस विद्या के मंदिर में आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना से करें। रत्नदीप का प्रज्वलन प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने का। मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री दीपक चौरसिया जी से कि वे अपने करकमलों द्वारा रत्नदीप प्रज्वलित करें, और मैं अनुरोध करूंगी डीन फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन से कि वे आएं और उनका साथ दें। सर प्लीज। Started with a dental college in the year 2002 under the aegis of the Shmesh Educational Charitable Trust with the sole aim of spreading education and doing charity. And it was very soon that SGT Dental College created a niche for itself in the entire North India. Now, SGT College of Physiotherapy, Medical College was started, following which we had SGT College of Nursing, Engineering, Hotel Management, Ayurveda, Journalism, Mass Communication, and the list goes on. It was in the year 2013 that SDT was conferred with the status of a private university. And today, sir, we offer more than 100 courses through 17 faculties. And the Faculty of Journalism and Mass Communication is definitely a glowing feather in the cap. Today we are here for the orientation program of the first year students of the Faculty of Mass Communication. Well, for a student, one of the most important turning moments of the life is when he or she has to decide his career after passing the 12th standard. And you know what? We all have a liking or bent for a particular subject or a particular stream. But how do we actually develop that liking? Well, I think most of us, somewhere at the back of our minds, we all have a role model. A person whom we look up to. A professional like whom we always want to be. These role models are actually those professionals who personify a profession, who become synonymous with the profession. For a cricketer, Sachin Tendulkar defines cricket. For a dancer, probably Michael Jackson would be the role model. And ladies and gentlemen, I'm sure you agree that for a journalist, who better than Sri Deepak Chaurasiya ji can define the profession? Very rare that we get to see such a stalwart of our profession. It's even rarer to hear him speak. And I don't know what to call an opportunity when you have just entered the profession of journalism and here's the man himself there to inspire you, to motivate you, and to turn your dreams into a reality. So now, ladies and gentlemen, may I request the Dean Faculty of Mass Communication, Professor Raghav Chari, to kindly deliver the welcome address and to also formally welcome our worthy guest speaker. I warmly welcome him here, and even I am rather new to this place. When I first started thinking of association with this university, my first thoughts were the Chancellor himself is a great professional. He's a very well-known journalist himself. Ram Bahadur Rai has contributed immensely to this profession. And secondly, when I was trying to look at the universities or the departments, like just now what Bharti has said, every department is a professional department here. It is a university truly professional.
medicine, engineering, dentistry, physiotherapy, mass communication, hotel management, you name it, every department is a professional department. So when we were organizing this, the Vice Chancellor asked that please organize an orientation lecture. I thought we should really, who should I invite? And I thought that truly a person whose illustrious career itself is a saga of professionalism, I thought that would be the place where we should invite. And the only name which came to me was Deepak Chaurasia. कुछ लोग तो इनकी जो जर्नी है आज तक से लेकर स्टार न्यूज़ जो आजकल एबीपी न्यूज़ है, उसके बाद कुछ अरसे दूरदर्शन न्यूज़ में भी जहां मैं काम कर चुका हूं, वहां से ये फिर अपने एडिटर इन चीफ जो है इंडिया न्यूज़, अपना न्यूज़ इनका वहाँ पे एडिटर इन चीफ भी है, एंकर भी है, वेल नोन एंकर भी है। अब इनके बारे में कुछ और कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग उनको को फाउंडर ऑफ आज तक है, इट इज़ वेरी नोन बाय दैट, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी ट्रू, ही हैज़ बीन द को फाउंडर ऑफ द 24/7 वर्जन जो है आज तक का। लेकिन इससे पहले जब मैं दूरदर्शन में था उस वक्त एक चेहरा मेरे सामने और भी आता था, क्योंकि हम लोग एक आधे घंटे की न्यूज़ की बात करते थे उस वक्त। वो खबरें जो आती थी आधे घंटे की, उस समय 24/7 नहीं था और दूरदर्शन के बुलेटिन्स होते थे, और एक एंकर इनसे पहले जो मतलब एक छोटा वर्जन ऑफ आज तक था जो कहा करते थे ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार करिए कल तक, वो थे सुरेंद्र प्रताप सिंह एसपी जिनको कहा करते थे। एंड ही हैज़ एक्चुअली कंप्लीटली चेंज द होल आइडिया ऑफ टेलीविजन। उस वक्त तक सिर्फ दूरदर्शन की मोनोपोली थी और उन बुलेटिनों से, उन एंकरशिप से जो थे हम लोग ourselves were such great fans। हालांकि वो बुलेटिन्स 15-15 मिनट की लेके आते थे, हम लोग, मैं प्रोड्यूसर न्यूज़ था और वो बुलेटिन्स को लेके मतलब असेंबल करना और इतना टेंशन बढ़ जाता था, लेकिन वी आर ऑल यूज्ड टू वांटेड टू लिसन टू हिज एनर्जी एंड उस टाइप के बुलेटिन्स। एक नया आयाम, नया डायमेंशन उस वक्त आया टेलीविजन के बाद। उसके बाद एसपी के बाद मुझे लगता है ये 24/7 चैनल्स के अंदर एक नई ऊर्जा जो आया है, वो मैं एक बहुत बड़ा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि दीपक वो नई ऊर्जा है। वो आज तक से ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि एक जब ये बीच में दूरदर्शन 2003 था शायद 2003-2004, तो उस वक्त जब ये गए वहाँ पर, उस वक्त भी मुझे लगा कि एक आंधी सी थी कि मतलब दूरदर्शन का पूरा, मैंने सोचा शायद कायाकल्प हो जाएगा जो हम लोग नहीं कर पाए इतने सालों से। वो एक थोड़ा अरसे के लिए थी, लेकिन ये इट वाज अनफॉर्चुनेट कि वो ज़्यादा लंबे अरसे नहीं रहे वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए थे। और उस वक्त दौरान भी दूरदर्शन में भी काफ़ी परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, और दूरदर्शन में जो कि इस प्रकार की मतलब जो नई एनर्जी लेके आए थे, उसके बाद मेरे कई स्टूडेंट्स हंड्रेड्स में तो वो दूरदर्शन के रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट्स रिक्रूट होते रहे, क्योंकि वो हमारे जो मतलब ये बन पड़ा था कि दीपक जी जब आए हैं तो उन्होंने किस प्रकार के बदलाव आया है। तो आज भी आप देखोगे दूरदर्शन के अंदर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो प्रधानमंत्री के साथ भी फॉरेन विजिट्स में भी जाते हैं और अच्छी सीरियस रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी रिपोर्टिंग करते हैं आजकल। तो वो सारे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं। तो हम लोग भी सोच रहा था कि इससे अच्छा मौका कौन सा हो सकता है कि एक प्रोफेशनल है, तो आई एम श्योर वी विल ऑल बेनिफिट फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद अस। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से दिस ऑल्सो दैट हिज प्रोफेशनलिज्म, इस ऊर्जा की हम लोग सब बात करते हैं। कल ही की बात थी, मैं टेलीविजन चैनलों में देख रहा था कि एक बड़ी चर्चा हो गई, बहुत ही भारी चर्चा थी कि सारे चैनल्स उसमें चर्चा कर रहे थे। एक तो था कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए, और एक था कि बीफ खाने से हुसैन बोल्ट जो है वो कई स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में जीत पड़े। तो ये एक तो था बीजेपी के खुद के मिनिस्टर जिन्होंने मतलब मंत्री जो थे, उन्होंने कहा कि ये महेश शर्मा जी उनकी बात थी, और उन्होंने कहा कि ये जो है ड्रेस कोड होना चाहिए फॉर इस प्रकार की सुरक्षा के लिए। तो ये डिस्कशंस हर चैनल में चल पड़े, और दीपक के ने भी उनके भी चैनल में था, ये भी उसी चर्चा कर रहे थे। सब ने
इसको कंडेम किया, मतलब काफ़ी लेवल डिबेट चली, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की, जो एक हट के थी, वो दीपक ने एक विवशता कही कि कहिए या कहिए आज के मुद्दा चैनलों के बारे में। उन्होंने ये कहा कि ये जो इस प्रकार की बातें जो होती हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रकार के बयान जो देते हैं राजनीतिक नेता, और उसके ऊपर इतनी सारी चर्चाएं जो होती हैं, ये कितना समय बर्बाद कर रही है। ये मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने उसके अंदर, ये किसी शायद एंकर ने नहीं कहा, कई एंकरों ने कहा ये शर्मनाक बात है, ये सब बात है। तो ये इनका कहना था कि ये जो इस तरह की बेकार बयान और इस प्रकार की बेकार चर्चाएं भी, उसके बारे में कह रहे थे कि मतलब खुद की चैनल भी कर रहा है। तो एक थोड़ा व्यवस्था थी, क्योंकि मतलब इस प्रकार की बातों से इससे अच्छा कई और बड़े सब्जेक्ट्स होते थे, मतलब चुनौतियाँ बहुत हैं देश के सामने, उसके बारे में कह। सो ही इज़ अ सिंसियर हार्ड वर्किंग। इनको द बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम इज he is fearless. That is his original character, and he is fearless and he is straightforward. बिल्कुल outspoken है, जो भी मतलब बात को लगती है कहनी है वो कहनी है, चाहे अपनी चैनल है उसका क्या कंसिक्वेंस है, कुछ भी हो। ये एक बड़े पत्रकार की निशानी है, और मैं इस बात में बहुत ही feel very proud that I have been associated. I have followed his career right from his student days to every channel. So we feel very proud. तो लोगों का बहुत सा ये कहना भी है कि अब जो है पत्रकारिता का पतन होता जा रहा है, इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि एक भी दीपक सही चलता रहे तो वो बहुत सारे दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for the wonderful introduction. Deepak Chaurasia ji is a household name. He is a name who does not need any introduction in any society of people. Be it a group of professionals, a group of students, or even a group of homemakers. You name him and anybody can visualize this creative, active, ever energetic and dynamic journalist daringly speaking all facts about the most controversial issues of the world on national television. An intellectual who connects with everybody. Chaurasia ji does not have a selected class of audience. He has a class in himself to connect with all audience. Who when asks a question makes the nation feel that he is their representative, asking on their behalf. And when he expertly comments, he makes his fraternity proud that here's a daring journalist who's living the freedom of media. Words fall short to define this razor-sharp intellect and daring professionalism. Well, just to formally introduce Chaurasia ji, may I give a very brief account of his career highlights. Mr. Chaurasia is an alumnus of the prestigious Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. He had joined Aaj Tak and later joined DD News as a consultant editor in the year 2003. He also joined Star News, which became ABP News, and presently is in the capacity of editor-in-chief at India News, as we all know. और अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी श्री दीपक चौरसिया जी को कि वो एक बार आएं और अपनी खनकती हुई आवाज़ों के साथ प्रोफेसर चारी साहब, लोग कहते हैं गुरु देवो गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ये होता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी अवतार है। तो गुरु जो आपको देता है, और उसके छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करूंगा। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, लंबा रास्ता था, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अपने घर से लगभग 1 घंटा 45 मिनट लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, वरना मैं और टाइम पे आ जाता, क्योंकि जनरली आई एम नॉट लेट ऑन शेड्यूल एंड दैट्स नॉट माय हैबिट आल्सो। बट रास्ता बड़ा लंबा था, मुझे दिस साइड ऑफ द सिटी का कोई आइडिया नहीं था। मुझे आ रहा था कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं ओरिएंटेशन लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ। 92 का वो दिन याद आया जब मैं लगभग 319 रुपये लेके अपने गांव सेंधवा से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा था। और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर मुझे अरमा आसफ अली मार्ग पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने जाना था। अपने एक रिश्तेदार के घर रुका था।
सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि रिक्शे वाले ने मुझसे 5 रुपए के बजाय 25 रुपए लिए। जब मैं रियलाइज किया और मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि दिल्ली में अगर रहना है तो अपनी पॉकेट बचा के रखनी पड़ेगी, और दूसरा ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे चीट करने वाले हर जगह मिलते हैं। दोनों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल हम लोग पहुँच गए, हमको प्रोफेसर चारी जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। उस वक्त टेलीविज़न कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रोफेशन नहीं था। इनफैक्ट लोग जर्नलिज्म के बारे में भी बहुत नहीं सोचते। जर्नलिज्म भी उस वक्त एक ग्लोरीफाइड करियर के तौर पर नहीं आया था। टेलीविज़न चैनल शुरू नहीं हुए थे, और प्राइवेट टेलीविज़न सिर्फ जो है दूरदर्शन तक सीमित था। दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं। थोड़े साल बाद न्यूज़ ट्रैक और ये सब बाकी बनना शुरू हुए जो वीडियो कैसेट्स के फॉर्म में आते थे। हमारे लिए टेलीविज़न नया था। हम तो ये सोचे थे अखबारों में लिखेंगे, जितना कमा पाएंगे कमाएंगे, जितना करेंगे उतना करेंगे। लेकिन एक जज्बा था, एक जिसको कहते हैं ना, एक किक। आपने किक फिल्म देखी होगी ना, सलमान खान। वो किक हमेशा लगी रहती थी कि नहीं यार कुछ करना है, इससे आगे भी कुछ करना है। दिल्ली ऑफिस में लिखने लगे, पार्लियामेंट कवर करने लगे अखबारों के लिए, इससे आगे भी कुछ करना है। तभी मैं एक फैक्ट को यहाँ पे ठीक करूंगा। आज तक कैसे बना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे जो एडिटर इन चीफ है अरुण पुरी, उनको एक जी.के. रेड्डी अवार्ड मिला। जी.के. रेड्डी हिंदू के पहले फाउंडिंग एडिटर थे, बहुत बड़े संपादक थे। That time they were opening up for private channels. तो उन्होंने हमको प्रपोजल दिया कि why don't India Today Group do a हिंदी न्यूज़ चैनल। तो हिंदी न्यूज़ बुलेटिन जो आज तक बाद में आया 17 जुलाई 1995 को। अरुण पुरी was little confused। उनको ये लगता था कि हम हिंदी के लोग हैं नहीं, अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, दून स्कूल, अंग्रेजी, बाकी चीजें। तो उनको ये लगा कि क्या हम कर सकते हैं। तो हम जो 3-4 हिंदी वाले थे वो ऑड मैन सिस्टम, तो हमने बोला नहीं सर बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो भाई उसका पायलट बना। तब एनडीटीवी शुरू कर सकता था द न्यूज़ टुनाइट, उसकी एंकरिंग प्रणव राय करते थे। 2 पैरेलल प्रोग्राम चलते थे। और विनोद दुआ को मिला था परख चुनौती करके उनका एक प्रोग्राम था, और वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो फाइनली 2 ही फ्रेम में बचे, एनडीटीवी व्हिच कन्वर्टेड इनटू अ चैनल, 2 चैनल्स, इनफैक्ट मोर चैनल्स लेटर, एंड आज तक। 17 जुलाई 1995 के उस लॉन्च के लिए हमने एक मास्टर टीम बनाया। आप समझते हैं ना मास्टर टीम क्या होता है, जिसमें पूरा बुलेटिन, डमी बुलेटिन जाता है उस दिन का, जिसके आधार पे जारी सर जैसे लोग वहाँ पर उसको देखकर अप्रूव कर सके कि हाँ दिस इज फिट टू गो इन अ बुलेटिन। बना, और आपको आश्चर्य होगा कि उसका खर्चा जो है 280 रुपए था, क्योंकि बाकी चीजें सब असम्बल करके रखी हुई थी। 280 रुपए भी पंडारा पार्क में पिंडी नाम का एक होटल है, उसके रेस्टोरेंट का बिल था। तो अगर आपके पास आइडिया है तो आइडिया रुकता नहीं है, और अगर आइडिया अगर आपके पास है तो आपको ये जरूरी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमको दोनों रास्ते पता थे। अगर आपको बॉम्बे जाना है और अगर आप बनारस की ट्रेन में बैठ गया तो गड़बड़ा जाएंगे, बनारस ही पहुंचेंगे, बॉम्बे नहीं पहुंचेंगे। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि आप अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर अपने आप को, अपने करियर को डिसाइड करना है। अपने करियर को डिसाइड करने के लिए आपके अंदर एक फोकस की बहुत ज़रूरत है कि मुझे करना क्या है। ए, मुझे एंकर बनना है, बी, मुझे असाइनमेंट पे काम करना है, सी, मुझे प्रोडक्शन में जाना है, डी, मुझे रिकंस्ट्रक्शन में जाना है, मुझे फिक्शन में जाना है, दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए। बट प्लीज़ उसके लिए अपने दिमाग को क्लियर रखें। आप उसको कैसे अचीव करेंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन अपने लिए सेट करिए कि 2 साल में मेरे को यहाँ पहुँचना है, 2 साल में मेरे को यहाँ पहुँचना है। मेरे को लगा मुझे रिपोर्टर बनना है, मैं बन गया। फिर मुझे लगा मुझे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बनना है, मैं बना, मेहनत की उसके लिए। फिर लगा ब्यूरो चीफ बनना है, बना। फिर लगा कि पॉलिटिकल एडिटर बनना है, बना। फिर लगा कि एग्जीक्यूटिव एडिटर बनना है, बना। सो यू हैव टू find a way out for yourself कि what are going to be your milestones। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने लिए इम्पॉसिबल टारगेट न सेलेक्ट करें। कि आप एक आज के दिन सोचने लगे कि यार मैं तो 6 महीने बाद शाहरुख खान बन जाऊंगा, that's not possible। So आप अपने लिए इम्पॉसिबल टारगेट न सेलेक्ट करें।
एक पत्रकार क्या है, मुझसे लोग बड़ा पूछते हैं कि साहब एक पत्रकार क्या है, क्या करता है एक पत्रकार। तो मेरी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है पत्रकार के बारे में। एक पत्रकार वो है जो दिखता है, लिखता है या फिर बिकता है। बिकने से मेरा मतलब मंडी में सेल लगा के बिकने के नहीं, बिकने का मेरा मतलब कि अगर एक पत्रकार एक बैकरूम बॉय में भी काम कर रहा है, अगर वो ऑफ द स्क्रीन भी काम कर रहा है, एट द बैक ऑफ द स्क्रीन भी काम कर रहा है, तो उसकी इतनी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए कि अगर उसकी जी टीवी में नौकरी नहीं चल पा रही है तो एबीपी न्यूज़ वाला या इंडिया न्यूज़ वाला या इंडिया टीवी वाला उसके काम के आधार पर पता करके रखे कि हाँ दिस इज द पर्सन whom I want in my organization. So that is called your market value. पूछते हैं ना बी लेवल के प्रोफेशनल थे, सी लेवल के, किस लेवल के हैं, किस एक्सपीरियंस ग्रुप के, 10 प्लस के हैं कि 5 प्लस के हैं कि बिगिनर लेवल है। तो आपको जिस ब्रैकेट में आप जाते जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपनी वर्थ बनानी पड़ेगी। काम सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आपके परफॉर्मेंस से और उससे मिलने वाले पैसे पे। मैं मानता हूं कि लोग ये मान के चलते हैं कि शुरुआती दिनों में शायद टेलीविजन के अंदर पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन पैसे जब मिलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, पर ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी वर्क क्या है, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने लिए अपना करियर चार्ट तैयार करते हैं। तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपकी से ये होगी कि आप अपने लिए छोटे छोटे गोल माइलस्टोन तय करो और अपने लिए करियर चार्ट की शुरुआत करो कि मैं आज से ये करूँगा। तीसरी चीज, मुझे मालूम है कि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, गूगल, ये आपके पास इतने बड़े उपकरण हैं कि आपको ये तुरंत किसी भी चीज का जवाब दे देते हैं। लेकिन कई मौके ऐसे आएंगे जब आप गूगल नहीं देख पाएंगे। अगर आप एंकर कर रहे हैं, अगर आप फील्ड पे हैं, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो जो बेसिक फैक्ट्स ऑफ योर ओन बीट, ऑफ योर ओन सब्जेक्ट, यू मस्ट नो एंड यू हैव टू नो। आज अगर मुझसे कोई पूछता है कि 92 से सर उस साल में इस नेता के साथ क्या हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हवाला केस में क्या हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, मैं उनको बिल्कुल आप याद से बता सकता हूँ क्योंकि ऑन द स्पॉट मैंने उन चीज़ों को कवर किया। इस एक्सपीरियंस में आने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट इतनी सारी अमेजिंग रिपोर्ट्स हैं इंडिया में, चाहे वो इराक वॉर की हो, चाहे आप निकाल के देखिए उनको, आपके पास खजाना है कंप्यूटर के तौर पे। तो तीसरी बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में भी आपको महारत हासिल करनी है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो दुनिया भर के फील्ड में, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी हो, आजकल स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चलने लग गए हैं। लोगों को पता होनी चाहिए छोटी से छोटी जानकारी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उस चीज के अंदर अपनी महारत हासिल करें, खूब पढ़ें, क्योंकि सीखना खत्म तो जीतना खत्म। अगर आप सीखेंगे तो आप जीतेंगे। आपने सीखना छोड़ दिया, हम खुद सीखते हैं, अपने ड्राइवर से सीखते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड से सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी नई टेक्निक्स क्या आ रही है। मेरी छोटी 1.5 साल की बच्ची है, वो पूरा आईफोन ऑपरेट कर लेती है और उस आईफोन के कई सारे ऑपरेशन मुझे आज तक समझ नहीं पड़ते। देन यू हैव टू सी। और चौथी चीज मैं आपको कहना चाहूँगा, बी अ फुल हैंड ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत तेजी से चेंज करेगी। जब तक आज टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे, और आपका जर्नलिस्ट और टेक्नोलॉजी का रिश्ता मियाँ और बीवी वाला है, एक दूसरे से जो रूठे मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका टेक्नोलॉजी पे हाथ नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आप नई और इनोवेटिव तकनीक के साथ ना तो अपने को फीड भेज सकते हैं, ना आप अपने आप को रिपोर्टिंग के तौर पर पेश कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ा है, आप एक बहुत हाई स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पे धड़ाधड़ गोलियाँ चल रही हैं और आपको लाइव रिपोर्ट करना है, जब लाइव रिपोर्ट आपको स्काइप से करना है और स्काइप आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, या स्काइप का सिग्नल फेल हो गया, आपके पास प्लान भी क्या है। फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो चौथी चीज़ जो मैं सबसे बड़ी बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी पर पूरा आपका हैंड होना चाहिए। अगर आपको जर्नलिज्म में आगे बढ़ना है या दुनिया में आज की तारीख में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, जितनी भी टूल्स हम लोग रोजमर्रा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ, मैं बड़ी लच्छेदार बात क्यों नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने ऐसा किया था, यहाँ पे ऐसे गोली लगी थी, वहाँ पे ये लगा था। बट ये आपको कोई नहीं सिखाएगा।
ये आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आपको वाकई ओरिएंटेशन के दिन किन किन स्टेप्स को अपने दिमाग में रख के अपने आगे के करियर को प्लान करना चाहिए। जो अगली बात मैं आपको बता दूं वो ये है सोर्स बिल्डिंग, कि आखिर सोर्स बनाए कैसे जाते हैं। ये भी आपको कोई नहीं सिखाएगा कि सोर्स बनाते कैसे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी नेता के घर जाते थे, मिलता नहीं था वो, सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, सिर्फ अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5-5 सवाल पूछते थे, ताकि कुछ कहीं उस आपका चेहरा तो उसको रजिस्टर हो, तो अगले दिन वो आपको नाम से ही बुलाएगा, अगले दिन वो आपको इम्पोर्टेंस भी देगा, यार बड़ा बवाली है, कई सवाल पूछता है, किसी दिन एम्बेरसिंग सवाल में फंसवा देगा। तो आप जहां पर भी खड़े हैं आपको अपनी प्रेजेंस को नोट कराना होगा, और यही असली जर्नलिज्म है। जब तक आप अपनी उस प्रेजेंस को नोट नहीं कराएंगे तब तक दर्शक भी नहीं आपको देखेगा, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ नया नहीं है आप किससे कॉम्पीट कर रहे हैं। आप चैनल लगाएंगे तो एक तरफ बच्चों का चैनल आ जाएगा डिज्नी जूनियर, दूसरा दबाएंगे तो कैटरीना कैफ नाच रही होगी, तीसरा दबाएंगे चिकनी चमेली चल रहा होगा, चौथा दबाएंगे टिंकू जिया चल रहा होगा, 5वें में कोई बढ़िया सी मूवी चल रही होगी। तो आप किन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिशन किन से है। और संडे को चल रहा होगा तो कपिल शर्मा शो चल रहा होगा। सो आपको बड़ा क्लियर रहना है कि आप कंपटीशन में किससे हैं, और अगर आप 1 मिनट या 30 सेकंड टीवी पर आ रहे हैं या टीवी के लिए 2 मिनट या आधा घंटे का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, तो आपका कंटेंट कैसे अलग हो जो आम दर्शकों को अपनी तरफ खींच सके। इट शुड स्टैंड आउट। अगर आप वही परोस रहे हैं जो बाकी लोग परोस रहे हैं, तो फिर आपका जो दर्शक आएगा, 1 मिनट देखिएगा चला जाएगा, वो सब चैनल देखता है, कोई लॉयल्टी फैक्टर नहीं। आज की तारीख में हमारा रिसर्च शो करता है कि दर्शक का किसी भी चैनल के साथ कोई लॉयल्टी फैक्टर नहीं, वो हर चैनल देखता है, पर जिस पर जितनी देर तक रुक गया वो उसकी टीआरपी बन गई। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और कई सारी बातें हैं जिन पे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे आपको अपने आपके लिए एक मार्केट वैल्यू, मार्केट नीश तैयार करना पड़ेगा, कैसे आपको अपने लिए एक सब्जेक्ट चुनना होगा जो आपका प्रिय हो, जिसके साथ आपको काम करने में मज़ा आता हो, और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना स्पेशलाइजेशन करें। जैसा मेरे पहले पॉलिटिक्स चुना, पॉलिटिक्स के बाद मैंने इलेक्शंस चुने, इलेक्शंस के बाद मैंने डिप्लोमेसी चुनी, फिर मैं मल्टीटास्कर हो गया कि हॉलीवुड में अगर कंगना मिल रही है तो वो भी मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए खुश रहती थी और बाकी लोग भी खुश रहते थे। बट टू क्रिएट दैट सिचुएशन आपको 10-12 साल का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन आप पाँव कैसे जमाएं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा मानना ये है कि आज अपने छोटे छोटे गोल्स आप तय कर लो। अगर वाकई आप सीरियस है जर्नलिज्म में, आपको जर्नलिज्म में जाना है, लाइफ में इस बात की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको ये पता है कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, तो आप ये आधी चीजें अपने आप सॉल्व। और एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमेशा एक बात ध्यान रखें, खबर और मौत कब टकरा जाए तो कोई भरोसा नहीं। मैं एक बार नीचे उतरा अपने घर के, क्योंकि वहाँ पे रहता हूँ तो तमाम बीट कांस्टेबल जो होते हैं, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है ना, वो मेरे को जानते हैं। तो मैं नीचे उतरा किसी काम से, कुछ सामान खरीदना था। तो बीट कांस्टेबल मेरे पास आया, तो बोला सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? मैंने पूछा क्या हुआ? बोले सर सरोजनी नगर में तो इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। मैं शॉर्ट्स में था, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, सरोजनी नगर पहुँचा, टीसीपी के बाद मैं पहला आदमी पहुँचा था। और शैनलो पे चल रहा था, इट वॉज सिलेंडर ब्लास्ट। मेरा सरोजनी नगर के ठीक बगल में रहता, बल्कि वहाँ तो 23 लोग मारे गए थे धनतेरस के पहले ब्लास्ट। तो कहाँ पे आप खबर से टकरा जाएं, आपको इसीलिए एक पत्रकार को 24/7 अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ चालू रखने चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि आपके पास प्रोफेसर चारी जैसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारों के लिए पूरी फौज तैयार की है दिल्ली के अंदर। शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़े हुए बच्चे नहीं हों या कम तादाद में। मैं ये जानता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़े बच्चे 70%, 60% टॉप मोस्ट जगहों पर हैं इंडियन न्यूज़ इंडस्ट्री में, खासकर टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो आप एक अच्छे हाथों में हैं, उनके अनुभव का लाभ लें, उनसे पढ़ें
और पढ़ते वक्त पढ़े, बाकी काम बाकी टाइम पे करें, वो सबसे बेहतर है। इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी तरफ से बोल किया हो तो माफ़ी करना, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं साथ। सीखना खत्म तो जीतना खत्म, 2 वाक्यों में चौरसिया जी ने इतनी खूबसूरती से अपना सफ़र बताया। कितनी छोटी छोटी बातें एक टीचर की तरह आप सबको सिखाई हैं। These are the golden moments of your life which you would remember always in your career. धन्यवाद सर। The house is open for questions, so if any budding journalist wants to ask question, here's world's leading journalist to answer the question. As the new media is taking over, internet basically. So how do you see the future of broadcast industry? How optimistic are you about the broadcast industry? Look, this debate was very much there in 1998 and 1999 when TV channels were mushrooming in this country, especially private news channels. But the importance of print media did not decrease. After that TV, social media came. Everybody thought that social media will take over electronic media and print media, but all three are running together. Now, new media has come, which is you call digital media or mobile media or whatever. They will all run parallel. They will have their own economic system, they will have their own market, they will have their own niche, and they will have their own product. So I do not see that there is going to be any sort of a conflict between all three of them, but it will make every platform very competitive with each other. Print will be has to be competitive with social media, or TV media and broadcast media has to competitive with the digital media. So the competition will increase, and that's why the tension at workroom or newsroom will also increase. So be ready for that. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर सोशल मीडिया के आने से टीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोशल मीडिया के आने से टीवी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कई सारे इश्यूज और कई सारी न्यूज़ सोशल मीडिया पर बन जाती है। कुछ न्यूसेंस होती है उसमें, कुछ बकवास होती है और कुछ वाकई थॉट प्रोवोकिंग होती है। लेकिन ये जरूर पड़ा है कि पत्रकारों और एंकर को बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। मेरे यहाँ कभी भी किसी जर्नलिस्ट से ऐसा सामना नहीं हुआ है, मरीजों से ही होता है। सिर्फ एक सवाल मैं शायद इन सब बच्चों के बिहाफ में पूछना चाहूँगा कि जो हम सर रिस्पॉन्सिबल मीडिया बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को हम लाएं, और काफ़ी बार हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं और अक्सर यही कहा जाता है कि जो चीज़ एक्चुअली मीडिया को पेश करनी चाहिए वो मीडिया नहीं करती है, और वो चीज़ों को हम ज़्यादा पेश करते हैं शायद जो बिकता है। So I would like you to just add a comment कि how this can be balanced and how responsible media can perform in probably today's circumstances, क्योंकि ये काफ़ी circumstantial है सर कि क्या करना है और क्या नहीं कर सकते। देखिए, मीडिया वो चलाता है जो समाज देखना चाहता है। अब वो अच्छा है, आप उसको अच्छा टर्म करें अपनी नज़र से, बुरा टर्म करें, और हर समाज की हर जगह की देखने की जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो मीडिया हमेशा एक लिबरल और मिडिल पाथ लेने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 1992 बाबरी मस्जिद गिरी, इंडिया टुडे अपने कई सारे संस्करण निकालता था। उन्होंने उसका हेडलाइन रखा था नेशन शेम। आप इसको समझ पाएंगे, राष्ट्र के लिए शर्म की बात डूब मरने की बात, और यही उन्होंने गुजराती में छापा। अगली बार से उनका गुजराती संस्करण नहीं पूछा, वो मैगजीन ही बन गई, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उस कैप्शन से या उससे नहीं जुड़ता था। उनको जो लगता था कि नहीं ये ठीक हुआ है। दूसरी बात आपने कही कि हम निगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब बुलंदशहर में एक लड़की के साथ, उसके घर वालों के साथ सामने अगर 3 बार गैंगरेप होगा तो कौन सा न्यूज़ चैनल उस खबर को छोड़ेगा? अगर उस गैंगरेप पे आजम खान ये बोलेंगे, बेशर्म सा बयान देंगे और उसमें ये कहेंगे वो कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है, तो कौन सा न्यूज़ चैनल उसको नहीं दिखाएगा? मुझे पता है कि ये जो पूरी चीज़ें आती है ये नेगेटिव रिस्क में आती है,
लेकिन एज एन एडिटर इन चीफ मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि कोई भी चैनल एक ठीक बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करता है, बट वो डिपेंड करता है कि उनका न्यूज़ कॉल कैसा था, कितनी पॉजिटिव खबरें हैं। किसी में तो ऐसा होता है कि पूरी नेगेटिव खबरें आ जाती हैं, तो हमको कुछ पुरानी पॉजिटिव खबरें ठीक के उसको डालनी पड़ती है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द राइट बैलेंस। अब हम भी इंसान हैं, तो कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते उस पर डिपेंड होता क्या है। 24 घंटे चैनल चलता है, 24 घंटे की एक बात सोशल मीडिया पे उठती है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम तो सिर्फ 24 घंटे का 1 घंटे का पार्ट। सो दैट्स द मेन पॉइंट। मेरे हिसाब से राइट बैलेंस हर कोई बनाने की कोशिश करता है। मेरा एक ही सवाल है सर, मैं हर रोज़ घर से आता हूँ एक नई उम्मीद के साथ, मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं अपने बच्चों को जाके एक नया ज्ञान दूँगा। वो नया नहीं होता, वो जो भी मैंने अपने जीवन में किया है और जो सीखा है उसी में अपनी बढ़ोतरी देते हुए कोशिश करता हूँ हर रोज़। मैंने ये देखा है कि सर हमारा जो यूथ था वो 10 साल पुराना था और 10 साल में काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। मोबाइल फ़ोन और भी जो टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट है, कहीं ना कहीं सर की वजह से बच्चों की पढ़ाई में सिंसियरिटी लेवल कम हो रहा है, ऐसा देखा जाता है सर। पुराने समय में जब हम होते थे तो किताबें होती थी, वहाँ पे टीवी होता था और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे खेल हम खेला करते थे। बट आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन है, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, somehow we are feeling the lack of sincerity level in all the things. So इससे हम किस तरीके से आगे आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम हार जाते हैं, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, उस 2 बार करते हैं, हम हार जाते हैं, तो हम इस व्यक्तिगत तौर पर हम कहते हैं कि इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरे पास ये एक्सक्यूज़ है, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। तो आज आप एक बहुत ही प्रगतिशील जर्नलिस्ट हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले जीवन के 20 सालों में जब आपने जितने भी नए काम करे, नए नए अनुभव लिए होंगे, उस समय ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जो सबसे आगे रही है हर काम को करने में? मैं वो चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि इसके कारण मैं नहीं कर पाया। मेरा सिंपल ये मानना होता है कि, और मेरी लाइफ की फिलॉसफी यही है कि अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लो कि दूसरे वाले की छोटी हो जाए, तो आपको दूसरे वाले की लकीर को मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरी बात आपने कही, मुझे ये लगता है कि हर आदमी अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार होता है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, बोया पेड़ बबूल का आम काम से पाए। तो ये मेंटालिटी है, ये सोचने और देखने का नज़रिया है कि आप किस तरह से देखते हो। गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, फिर आधे में हवा है, आधे में उम्मीद है, ये आप डिसाइड कर लो। तो मुझे नहीं लगता। इसीलिए आदमी को सबसे पहले किसी चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए तो अपने आप का करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और जब आप अपना आपका एनालिसिस कर लें, अपने आप से संतुष्ट हो जाएं, तो आपको इस बात की क्लैरिटी क्या आ जाएगी कि आपसे आखिरकार गलती कहाँ। और मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ को जज्बे के साथ, शाहरुख खान बोलता है ना, पूरी कायनात भी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप वाकई कमिटमेंट के साथ किसी चीज़ को ट्राई करेंगे तो 1 और 2% चांसेस ही होते हैं कि आप उसमें असफल हों। धन्यवाद सर। Thank you, sir. सर मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि कई बार काफ़ी प्रेशर होता है और कई बार ऐसे भी होता है कि कोई खबर चल रही होती है, साथ कोई बड़ी खबर ही रहती है, तो मुझे बस यही जानना था व्हाट असाइनमेंट वाज टू डिफिकल्ट फॉर यू एंड आपने उसे मतलब कॉन्स्टेंट टाइम प्रेशर आपने उसे मैनेज कैसे किया? मैनेज कैसे किया? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2002 की बात है, ये कश्मीर है। कश्मीर में हम डाउनटाउन चले गए। डाउनटाउन वो इलाका जो थोड़ा अलगाववादियों से ब्रिटिश का है, वहाँ पे हुर्रियत की एक रैली चल रही थी। इलेक्शन होने वाले थे जम्मू कश्मीर में, जब उमर को हटा के महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर उस टाइम की बात, 2002 की बात। अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले थे, हुर्रियत की रैली चल रही थी। हम तो नॉर्मल सा एक वहाँ पर रैली कवर कर रहे थे, हम मंच तक चढ़ गए। मैं अब्दुल गनी लोगों के बगल में बैठा हूँ। विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड्स एक गोली आई तो लगी, ही वॉज असैसिनेटेड। फिर वहाँ कई सारे ग्रेनेड फेंके गए, लकीली वो। अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा? मैं अपने आप को बचाऊँगा या खबर लेकर जाऊँगा कि ऐसा हो गया? आपने जरूर खबर ही निकाली कि जर्नलिस्ट वही होता है जो मतलब जब सब भाग रहे हाँ, हो तो वही तो हम भाग के गए ना पीसीओ पे कि भाई यहाँ पे असैसिनेशन हो गया, इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पर। तो तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, मैनेजमेंट में लोगों को ज़्यादा पैसे क्यों दिए जाते हैं? डिसीजन लेने के लिए। एक जर्नलिस्ट को इतना रेजर शार्प या सब कुछ क्यों माना जाता है? ताकि वो एक डिसीजन ले सके, कॉल ले सके, टाइम पे ले सके। उसी के लिए
राघवाचारी सर और बाकी लोग आपको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ इट और हाउ टू मेक अ बेस्ट डिसीजन। तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेने पड़ेंगे। बम ब्लास्ट हो जाएगा तो अगला सवाल पूछेगा ये एंकर आप इसके बाद क्या, तो आपको ये बताना आना चाहिए इसके बाद क्या। नहीं है तो घुमाना भी आना चाहिए कि इसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना एक वाइब्रेंट जर्नलिस्ट की, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के होनी चाहिए, उतने में उसमें डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्या बोलेगा और क्या करेगा। क्योंकि जैसे ही आप कंफ्यूज होंगे ना तो आप लड़खड़ाने लगेंगी, आप फंबल करने लगेंगी, आपकी जबान लड़खड़ाने लगेगी और तब तक आदमी दूसरे जाल में चला जाएगा। And now, may I request Chari sir to kindly present Chaurasiya ji with a small sapling. So this is just a symbol of growth and prosperity. Wishing you a long life and a prosperous career ahead. And I also request sir to kindly present Chaurasiya ji with a small memento. Thank you so much, sir.